Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in my YouTube channel Art Test MCQs. Question number 1: which hormone is primarily responsible for maintaining pregnancy? The correct answer is option B, progesterone maintains pregnancy. Question number 2 हमारे पास, dear students, when does the quickening usually occurs in primigravida? The correct answer is option C, 18 to 20 weeks. Question number 3 हमारे पास, dear students, which is the most reliable method to confirm pregnancy? The correct answer is option A, urine pregnancy test. Option B होगा transvaginal ultrasound. Question number 4 है हमारे पास, dear students, the first fetal heart sounds can typically be heard by Doppler 8. The correct answer is option C, 10 weeks. Question number 5 है हमारे पास, dear students, which vitamin is most important in preventing neural tube defects? The correct answer is option C, folic acid. Question number 6 है हमारे पास, dear students, during pregnancy total blood volume increases by. The correct answer is option C, 30 to 50%. Question number 7 है हमारे पास, dear students, the term used for the number of pregnancies a woman has had is. The correct answer is option A, gravida. Question number 8 है हमारे पास, dear students, in pregnancy physiological anemia is due to. The correct answer is option C, hemodilution. Question number 9 है हमारे पास, dear students, what is the name of the softening of the cervix in early pregnancy? The correct answer is option B, Godel signs. Question number 10 है हमारे पास, dear students, the danger sign in pregnancy that may indicate preeclampsia is. The correct answer is option D, blurred vision. Question number 11 है हमारे पास, dear students, a woman who has had 2 pregnancies both resulting in live births is a nullipara, primipara, multipara, grand multipara. The correct answer is option C, multipara. Question number 12 है हमारे पास, dear students, which of the following fetal presentations is most common in labor? Breech, shoulder, vertex, face. The correct answer is option C, vertex. Question number 13 है हमारे पास, dear students, the first stage of labor ends with. तो पहला जो स्टेज होता है लेबर का वो किससे ख़त्म होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, सर्विकल डायलेशन. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर रिफर्स टू. तो सेकेंड स्टेज जो होता है लेबर का यानी डिलीवरी वाला प्रोसेस, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लूजन ऑफ फीटस. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज मोस्ट कॉमनली लोकेटेड इन द. जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ पर पाई जाती है ज़्यादातर के? इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, द फंडल हाइट एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज नॉर्मली एट द लेवल ऑफ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अम्बिलिकस. क्वेश्चन नंबर
17 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। इस चैनल पर तमाम आपको बीएस नर्सिंग, MDK, TCAT और ऑल टेस्ट प्रिपरेशन के MCQs मिलेंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सर्विकल डायलेशन ड्यूरिंग एक्टिव लेबर? 4 से 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमोरेजेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन बी, यूटेराइन एटोनी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, विच पोजीशन इज़ यूज्ड इन शोल्डर डिस्टोकिया मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को कमेंट करें और बताएं कि मैं कौन से जो है MCQs वो अपलोड करूं कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, MC रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, रिकमेंडेड फोलिक एसिड इनटेक इन अर्ली प्रेगनेंसी इज़। तो जो फोलिक एसिड जो है वो रिकमेंडेड होते हैं प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में, तो वो उनका पावर कितना हो, वो 400 mcg। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रेगनेंसी आयरन एब्जॉर्प्शन इज़ इंक्रीज ड्यू टू। प्रेगनेंसी में आयरन की जो एब्जॉर्प्शन जज़ाबियत जो है वो बढ़ जाती है, किस वजह से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो ये ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज ट्रांसफेरिन जो है वो बढ़ जाता है उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट, द बेस्ट वे टू मॉनिटर लेबर प्रोग्रेशन इज़। कौन सा जो है बेहतरीन तरीका है मॉनिटर करते हैं जैसे लेबर प्रोग्रेशन को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, द आइडियल इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी इज एट लीस्ट। The correct answer is option C, 18 to 24 months. Question number 24 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, a full term pregnancy is considered from। The correct answer is option B, 37 to 42 weeks। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, टेटानस टोक्साइड बूस्टर्स इन प्रेगनेंसी प्रिवेंट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नियोनेटल टेटानस। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम सल्फेट इन प्री इक्लेम्सिया इज यूज्ड टू प्रिवेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साइजर्स। जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनकी वजह से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, द लेटेंट फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर लास्ट्स until the cervix dilates to। The correct answer is option B, 4 centimeter। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, which hormone causes softening of the cervix and pelvic joints during labor? The correct answer is option C, relaxin। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट साइट फॉर IM intramuscular injection of magnesium sulfate in pregnancy। The correct answer is option C, dorsogluteal। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। ड्यूरिंग अ नॉर्मल डिलीवरी द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द फीटल हेड इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, occipito anterior। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, विच maneuver इज यूज्ड टू डिलीवर द शोल्डर्स इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स PROM इज कन्फर्म्ड बाय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा डियर स्टूडेंट्स C, नाइट्रोजाइन टेस्ट जो है वो किया जाता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, द बेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग लेबर
टू इंक्रीज यूटीरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी लेफ्ट लेटरल। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट एक्शन इन postnatal mother with uterine atony. The correct answer is option B massage uterus. क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ ट्रू लेबर इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सर्विकल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। अ न्यू बोर्न विथ स्कोर ऑफ 3 ऑन एपगर नीड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रेस्यूसाइटेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया इज। The correct answer is option A cold extremities. Question number 38 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। The uterus returns to non-pregnant size by। The correct answer is option C 4 to 6 weeks. Question number 39 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। Fundus of uterus immediately after delivery is at। The correct answer is option B umbilicus. Question number 40 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। Which drug is used to manage uterine atony? The correct answer is option C oxytocin. क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। प्रेग्नेंट वुमेन विथ साइजर्स हाई ब्लड प्रेशर एंड proteinuria likely has। The correct answer is option B eclampsia. Question number 42 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू कैलकुलेट gestational age। The correct answer is option C early ultrasound. Question number 43 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। Amenorrhea is defined as the absence of menstruation for। The correct answer is option C 3 months. Question number 44 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। The presenting part in breech presentation is head, shoulders, buttocks, arm। The correct answer is option C buttocks. Question number 45 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। आइडियल गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑफ टीटी। ये एक वैक्सीन होता है, उसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म है टीटी। तो उसका जो दौरानिया है वो कितना होता है, आइडियल गैप कितना होता है उसके बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 वीक्स, 4 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 46 से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। द हार्मोन असेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इज़। कौन सा हार्मोन जो है वो ज़रूरी है एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। बायोफिजिकल प्रोफाइल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। बायोफिजिकल प्रोसेस में सब होते हैं लेकिन एक चीज़ नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। द फर्स्ट फीटल मूवमेंट इज़ नोन एज। जो पहली जो फीटल मूवमेंट बच्चा जो है वो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी क्विकनिंग, उसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमी ग्रेविडा इज़ अप टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है
ऑप्शन सी 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी पर डेज। तो आयरन जो है वो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में एक दिन के लिए।